Hello everybody, welcome to my channel and thank you so much for joining me guys. And thank you so much for all the request in the comment section. क्योंकि आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा request किया है तो why not take all of your requests, help you with some guidance on the relationship, okay? But even before I get started, it is very important that we allow the tarot readers to read the energy as they are being drawn to read. Okay, expecting them to give a positive guidance, negative guidance is unnecessarily putting a lot of pressure on the tarot reader, and they are not to read the cards in a positive or a negative way. They are here just to bring clarity to the cloudiness that you feel around something. वो clarity आपके life में positive, I mean you can see this as a positivity, you can see this as a negativity, but actually there is nothing called negative. This is a very 3D dimension, 3D way of seeing things. We earthlings see things as negative and positive because of the duality. जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ पे रहता है, उसी तरह से ड्यूअलिटी भी अर्थ को दी गई है ताकि हम ह्यूमन बीइंग्स चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में, डार्क एंड लाइट में, नेगेटिव पॉजिटिव, हॉट कोल्ड, इन सारी चीज़ों में देख पाएँ और अपना डिसीजंस ले पाएँ. द डिवाइन हैज़ जस्ट thrown in this obstacle of duality so that it makes it more spicy. हमारे जो डिसीजन मेकिंग है थोड़े स्पाइसी हो जाए, थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाए, तभी तो पता चलेगा कि सोल अपने लिए डिसीजन लेती है या ईगो अपने लिए डिसीजन लेता है. तो ड्यूअल जो आप ये बोलते हो ना कि ये नेगेटिव रीडिंग नेगेटिव कर रही है, कुछ लोगों ने लिखा था कि ये तो मैम तो खाली इसके अगेंस्ट में रीडिंग्स देते रहती है, सारे वीडियोस को जाके देखो. एंड दिस इज वेरी I don't know if this is very kiddish way of seeing things, because ma'am is just reading the energy, and the energies are not per se negative or positive. Energies are only telling you कि ये area में healing की ज़रूरत है. Take this area into the sunlight. Let that receive the light. Let that receive some oxygen. Let that receive some fresh air, ताकि वो फिर से हरा भरा हो जाए. To tell that please don't expect anything negative or positive from the reading. Please approach the reading with an open mind and let the tarot readers read do the reading the way आप feeling drawn to do the reading. इतना freedom आपको ज़रूर tarot readers को देना चाहिए. And what else? All right, I think that is enough. Let's do the reading. Let's get started with the reading. Let me set the okay, all set. And yeah, I could have started, I wanted to do the reading on Monday itself. जब मैंने संडे को बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट देखा तो मुझे लगा कि मंडे को मैं रीडिंग कर दूंगी, बट आई डू हैव माई रिलेटिव्स एंड फैमिलीज कमिंग ओवर tomorrow, और मुझे कुछ तैयारी I got busy with some preparation work, जिसके कारण से मंडे और ट्यूसडे को मैं चाहते हुए भी आपके लिए रीडिंग नहीं डाल पाई हूँ, एंड माई अपॉलॉजीज टू यू गाइज. लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग, समथिंग दैट यू हैव बीन रियली वेटिंग फॉर. ओके, लेट्स डू द सुम्बुल फाहमान रीडिंग. जैसा मैंने बोला, आई विल बी बिजी फॉर अनदर 10-12 weeks, so I won't be able to do any reading for you, but today as I am free, I will try to give you couple of readings so that it keeps you satiated, if I can say that. So let's get started with the reading. तो जब बहुत सारा रिक्वेस्ट आया तो जब मैंने डिसाइड कर लिया कि ओके फाइन, let's do the reading on Sumbul and Fahman. And ever since I have taken this decision to do Sumbul Fahman का reading, तब से ये वाला जो डेक है ना मेरे नज़र में, for some reason it is coming. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस है कि आई यूज दिस टैरो ओरेकल कार्ड्स फॉर द सुम्बुल फाहमान गाइडेंस. तो मैं ये वाला कार्ड यूज करूंगी और ये वाला कार्ड रहेगा उनके गाइडेंस के लिए. ऑल दीज कार्ड्स आर ऑलरेडी चार्ज्ड एंड केप्ट, सो वी डोंट रियली हैव टू डू, ऑल द हार्ड वर्क इज रियली डन. वी हैव आवर स्पिरिट गाइड सिटिंग विद अस. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गाइडेंस. तो कौन सा गाइडेंस कैसे होगा? I will do, let's get started with what's happening in Fahman's life after that interview. And I think it's going to be a really positive session today, because after I
call the spirit guides, cleanse, clear, charge, and do all my rituals, tapping, meditation, and everything. I usually pull one card for myself for the session before I get going with other things, and this is the card that we have at the back of the deck. Relaxed and yes, so it's play time. Let's play with the cards. Our spirit guides are here. तो हम क्या करेंगे कि हम पहले जानेंगे कि फहमान के लाइफ में क्या हो रहा है. ओके, आई हैव दिस कार्ड हियर, सो व्हाई नॉट स्टार्ट विद सुम्बुल इटसेल्फ, बिकॉज मैंने ये सोचा था सुम्बुल का कार्ड ये रहेगा और फहमान का कार्ड ये रहेगा, बट क्योंकि सुम्बुल का ही कार्ड यहाँ पे मेरे सामने में है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सुम्बुल्स गाइडेंस. सो व्हाट वी आई डू इज व्हाट्स हैपनिंग इन सुम्बुल्स लाइफ. लेट्स सी. एज आई सेड, प्लीज सी द कार्ड विद ओपन माइंड. आई डोंट रियली टेक द प्रेशर ऑफ इम्प्रेसिंग ऑन इधर सुम्बुल फैन और फहमान फैन, क्योंकि क्या है कि टैरो रीडर की लॉयल्टी बस कार्ड से होनी चाहिए, अपने स्पिरिट गाइड से होनी चाहिए. जो स्पिरिट गाइड्स उनको कार्ड में दिखा रहे हैं उनसे होनी चाहिए, राइट? ऑल राइट. God's guidance angels, Archangel Michael, spirit guides, spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Sumbul. I just feel that there is something important that wants to come out from these cards. Guidance coming for Sumbul, for all Sumbul Fahman fans. Guidance coming for Sumbul. Okay, we have the card, and we will take the action steps from here. ये वाले cards हम बाद में देखेंगे once we have done the reading. We have read the energies, okay? Guys, the guidance, blessings coming for Sumbul. Thank you so much, dear angels. All this is for Sumbul's fan. Let's take this card. And this one too wants to come out. तो हमारे पास ये दोनों 3 कार्ड्स हैं. हम इसको साइड में रख लेंगे. अब हम देखते हैं कि सुम्बुल के लाइफ में क्या हो रहा है, जैसा कि सुम्बुल और फहमान के फैंस जानना चाहते हैं. Excuse me. God's guidance angels, Archangel Michael. Dear angels, thank you for helping us know, Sumbul's fans know what's happening in Sumbul's life. Anything that they can know. We thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Sumbul, for all their fans. Thank you for the guidance coming for Sumbul, what she needs to know about her life. Knight of Pentacles in reverse आया है. 10 of Pentacles. Feeling totally trapped in the past. The sun is opposite. Where do I keep this card, guys? Okay, let me keep it here. Can see that, right? What do we have going future? Recent future है ये. Yes, 8 of Cups. Ace of Cups in reverse. Knight of Cups in reverse. And can we keep it here? 8 of Wands in reverse. So what's happening with Sumbul's बैक में क्या है? द स्टार कार्ड. स्टार कार्ड इज ऑलवेज अबाउट समथिंग दैट यू रियली रियली वांट इन योर लाइफ. इट्स अबाउट योर ड्रीम. इट इज समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड. ओके ठीक है. हिंदी में तो स्टार का कार्ड पीछे में देख रहे हैं कि ये सारी जो एनर्जी जिस चीज़ के बारे में भी वो सोच रही है ना, क्वाइट पॉसिबली ये लिंक्ड हो सकता है उसके स्टार से. यानी कि स्टार क्या होता है? व्हेन वी विश अपॉन द स्टार, है ना. जैसे कि हम शूटिंग स्टार होता है या फिर टूटता हुआ तारा होता है, तो क्या होता है कि हम उससे विश मांगते हैं. तो वही वाला एस्पेक्ट है यहाँ पे. वही एनालॉजी है स्टार कार्ड के साथ. जब हम कोई चीज़ अपने लिए मांगते हैं, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल अबाउट लाइक द वे शी इज़ काइंड ऑफ स्टैंडिंग एंड वेरी एलिगेंटली. इट्स मोर लाइक रिलेटेड विथ हर ओन एम्पावरमेंट एंड हर ओन ड्रीम्स, ऐसा लग रहा है. चलिए आगे में देखेंगे कि क्या है. तो ये कुछ अपने ड्रीम्स के बारे में सोचते हुए ये सारी एनर्जीज प्ले आउट हुई हैं. हम देखेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है. हालांकि
यस जैसा कि मैंने बोला, इसके उसके ड्रीम से रिलेटेड ये एनर्जी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी वो क्या देख रही है कि क्वीन नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स हो गया है, यानी कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑलवेज अबाउट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, अपने ड्रीम्स पे, अपने जॉब, अपने बिजनेस पे काम करते हुए स्लोली एंड स्टेडली आप अपने काम पे काम कर रहे हो। लेकिन हो क्या रहा है कि ये रिवर्स होके पास्ट की तरफ, ऐसा लग रहा है कि ये इसने रिवर्स गियर कर लिया है और ये पास्ट की तरफ खींचा चला जा रहा है। अब इंटरेस्टिंगली आप देखिए, अगर वो पास्ट में जा रहा है तो पास्ट में किस एनर्जी की तरफ जा रहा है? एक ट्रैप्ड एनर्जी की तरफ जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि सुम्बुल अभी लाइफ में काफी एक रिवर्स गियर में पीछे की तरफ, अपने पास्ट की तरफ शायद खींची चली जा रही है, जहां पे वो पास्ट में ऑलरेडी ट्रैप्ड फील कर रही थी। ठीक है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैन यू सी द कार्ड्स? यहाँ पे देखिए, दिस इज हर सिचुएशन इन द पास्ट, जहाँ पे वो ऐसे लग रहे कि सारे सोर्ड्स उसके चारों तरफ है और वो बिल्कुल इसके बाहर जा नहीं सकती है। हालांकि डू रिमेंबर गाइज, ये जो सोर्ड्स है ना, उसके अपने मन के सोर्ड्स हैं, उसके अपने विचारों के सोर्ड्स हैं, जो कि उसको ट्रैप्ड फील करा रहे हैं। लिटरली ऐसा है नहीं, वो चाहे तो अपने आप को इस सोर्ड से, इस थॉट प्रोसेस से फ्री कर सकती है। ओके, डू रिमेंबर दैट। तो ये पास्ट में तो डेफिनेटली इसकी ये एनर्जी थी जहां पे वो ट्रैप्ड फील कर रही थी सिचुएशन में, अपने लाइफ सिचुएशन में। हालांकि हम जानते हैं कि ये जो कार्ड है वो बताता है ये आपके अपने थॉट्स हैं जो कि आपको बांध के रखे हुए हैं। आपने अपने आंख पे एक पट्टी बांधी है जिसको आप खोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे ये पास की एनर्जी है। अब यहाँ पे मेन एनर्जी क्या हो गया उसका, कि अपने करियर में वो स्लो एंड स्टेडली तो जा ही रही थी, लेकिन अचानक से जो भी कुछ चीजें हुई हैं या फिर जो भी हो रहा है अभी प्रेजेंट की एनर्जी है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो बैक गियर में चीजें जा रही हैं और वो वापस लग रहा है कि अपने जो पहली सिचुएशन थी जहां पे वो ट्रैप्ड फील कर रही थी वहां पे चलती जा रही है। अब यहाँ पे देखो, फिर से एक पेंटिकल का कार्ड है, यानी कि पेंटिकल का कार्ड का मतलब होता है ये 3D से रिलेटेड चीजें हैं। 3D यानी कि रोटी कपड़ा मकान, ड्रीम्स, एम्बिशंस, मनी, ये सारी चीजें होती हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे भी वो कुछ सोच रही है, हालांकि ये पीछे की तरफ जा रही है और शायद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो स्लोली एंड स्टेडली किस तरफ बढ़ना चाहती थी। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हो कि वो अपने उसकी दबी इच्छा है या फिर अंदर जो उसके दिल में जो चीज है जिसके बारे में ये सारी चीजें वो सोच रही हैं, वो उसका ड्रीम ही है। दिस इज मोस्टली लाइक व्हाट शी हैज प्लान फॉर हर करियर में भी, या फिर ड्रीम लाइफ हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये करियर ही लग रहा है। फॉर हर करियर, फॉर हर ओन एम्बिशंस, या फिर अपने करियर में, या फिर वो एक जो व्हाट शी वांट्स टू बिकम इन हर लाइफ। एक्सक्यूज मी, ये चीजें हैं। अगर सबकॉन्शियस लेवल में भी देखो तो यहाँ पे वो क्या चाह रही है कि सेल्फ एम्पावरमेंट। शी इज बेसिकली, ये जो ड्रीम है, this could be related with anything. It could be related with her career, it could be related with her dream, relationship, family, ये सारी चीजों से, बहुत सारी चीजों से रिलेटेड ये ड्रीम हो सकता है। बट क्योंकि यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑलवेज अबाउट यू वर्किंग ऑन योर सेल्फ। 9 ऑफ पेंटिकल्स अपने आप पे वर्क करके अपने बेटर वर्जन को बनना होता है, जहां पे आप अपने लिए कुछ अचीव करते हैं, कुछ बड़ा करने की कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सबकॉन्शियस लेवल में हम देख रहे हैं कि यही इच्छा दबी हुई है या फिर प्रिवेलेंट है, आप बोल सकते हैं। तो ये स्टार कार्ड किस चीज से रिलेटेड हो गया, इसके अपने ड्रीम से रिलेटेड हो गया। और यहाँ पे वो बहुत ही एक एलिगेंट वे में, एक स्टाइलिश वे में आप बोल सकते हैं कि शी इज यहाँ पे खड़ी है, जहाँ पे इट्स लाइक कि उसने जो भी चाहा था वो पा लिया है। तो यहाँ पे सबकॉन्शियस लेवल में वो वर्क कर रही है, चाहती है कि वो इस जगह पे पहुंचे। और यहाँ पे क्योंकि ये बैक ऑफ द कार्ड में, डेक में है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कहीं से दबी हुई चीजें आपको पता चल रही हैं। ठीक है, सबकॉन्शियस लेवल में भी यही हमें पता चल रहा है। लेकिन कॉन्शियस लेवल में उसके लाइफ में क्या हो रहा है, एक तो चीजें बहुत स्लो जा रही हैं और यहाँ पे एक रिवर्स गियर में पीछे की तरफ जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक पीछे की तरफ पुल है उसके करियर में या उसके लाइफ में, आप ऐसा बोल सकते हैं। और यही सारी चीजें यहाँ पे जो कॉन्शियस लेवल में चीजें हैं कि अभी कॉन्शियस लेवल में क्या हो रहा है कि सन इज अपसाइड डाउन। सन इज अपसाइड डाउन यानी कि शायद क्लाउडीनेस आने वाला है।
सन तो अभी भी है लाइफ में, उसके करियर में, लेकिन क्या है कि अब शायद ऐसा लग रहा है कि कॉन्शियस लेवल में बादल आने लगे हैं उसके करियर में, ऐसा लग रहा है। और शायद इसीलिए चीज़ें स्लो हो गई हैं, या फिर चीज़ें स्लो हो गई हैं इसीलिए क्लाउडीनेस आ रहा है कॉन्शियस लेवल में उसके करियर में या उसके लाइफ में, ऐसा हो सकता है। बट ये सारी चीज़ें उसके करियर से रिलेटेड ही मुझे लग रही हैं। ऑल राइट। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सारा एरिया जो है ये ब्लॉक्ड आया है गाइस। ओके, यहाँ पे टेम्परेंस देखिए, अगर ये ब्लॉक्ड आया है तो ये हमको क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप टू वर्क ऑन दीज एनर्जीज एंड ब्रिंग इट अपसाइड। कहने का मतलब है कि अगर ये एरियाज ब्लॉक्ड है और टैरो आपको बता रहा है, ये क्लैरिटी दे रहा है आपको कि ये एरियाज ब्लॉक्ड हो, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपने उल्टी चाल चलनी शुरू कर दी है। उल्टी चाल चलनी शुरू कर दी है कि मतलब कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिमोटिवेटेड हो रहे हो अपने करियर से, राइट? और वापस ट्रैपमेंट, अपने दिमाग को फिर से इंट्रैपमेंट की तरफ, क्योंकि क्या है कि अगर आप एक ही चीज़ को सोचने लगोगे, नेगेटिव माइंडसेट, यहाँ पे क्या है कि अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा है, चीज़ें भी बहुत स्लो हो रही हैं, जैसा चाह रहे हो चीज़ें वैसा हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा सा वापस क्या हो रहा है, आप पास्ट की तरफ जा रहे हैं, और पास्ट में ऑलरेडी एक खाई है ना। ये 8 ऑफ सोर्ड है जो आपके मन का खाई ही तो है जिसमें आप गिर जाओगे अगर आप पास में जाओगे। अगर पास में कोई ऐसी पॉजिटिव एनर्जी नहीं है जो कि आपको अपहोल्ड कर लेगी, अगर पास्ट के बारे में सोचोगे तो और भी वहां पे दुख और तकलीफ ही मिलेगा, और भी चीजें धुंधली हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे चीजें धुंधली ही थी आपके पास्ट में। एक चीज जो मुझे लग रहा है कि वो सोच रही है कि वो जाना तो यहाँ पे चाहती थी जहाँ पे वो अपने फैमिली के लिए काफी एक स्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहती थी, अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहती थी, एक 10 ऑफ पेंटिकल, शी वांटेड टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, नेम, फेम, हर चीज चाहती थी करना। उसकी पहले की रीडिंग और पर्सनालिटी से भी हमें पता चल रहा है कि वो कुछ करना चाहती थी, शी वांट्स टू डू समथिंग, मेहनत करके कुछ करना चाहती थी। हालांकि अब उसे क्या, अगर आप यहाँ पे खुद कॉन्ट्रास्ट करें देखेंगे कार्ड का, तो इंस्टेड ऑफ मूविंग टूवर्ड्स दिस, वो बैक गियर में कहीं और जा रही है। कहने का मतलब है कि जाना तो वो कहीं और चाह रही है, पर वो जा कहीं और रही है। देख रहे हो, ये जो डायरेक्शन है, ये जो झाड़ू है, ये ब्रूम है, इसको ये कहीं और ही लेके जा रहा है, जबकि वो जाना तो यहाँ पे चाह रही थी। सो देयर इज सम, शी वांट्स टू गो समवेयर, पर विंड जो है ना, विंड, उसके आसपास जो विंड चल रही है, क्योंकि ये हवा में चल रहा है तो हम विंड भी बोल सकते हैं इसको बहुत आराम से, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रूम। द विंड, the wind of change is taking her somewhere else and she wants to go somewhere else। आप समझ रहे हो, वो जाना यहाँ चाह रही थी, मगर चीजें ऐसी हुई कि अब वो पीछे की तरफ जा रही है, और पीछे की तरफ खाई है जहां पे वो ऑलरेडी ट्रैप्ड फील कर रही थी। आई होप ये सब समझ में आ गया होगा आपको। 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स हमें क्या बताता है? 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये उसका एटीट्यूड है जो कि बता रहा है कि ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, अब वो है कि क्या करे, वॉट शुड शी फाइनली डू, क्या वो किसी चीज को छोड़ दे या फिर उसको एक और चांस दे, क्या करे? शी इज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड यहाँ पे, या फिर शी इज रियली कंसिडरिंग टू टेक सम स्टैंड, लाइक क्या इसके साथ वो आगे बढ़े, या फिर एक बार, या फिर इसको छोड़ के आगे बढ़ जाए, या फिर इसको एक चांस दे, कुछ इस तरह का चीज वो सोच रही है अपने दिमाग में। और शायद ये कंसिडर कर रही है कि लेट गो करे या फिर एक चांस दे किसी चीज को, इसीलिए शायद वो पास्ट में जा रही है ताकि वो अपने जो कंफ्यूजन्स है इसको एड्रेस कर पाए, ये भी हो सकता है। ओके, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो उसने अपना गियर बदल के वो पास्ट की तरफ जा रही है। पास्ट में ये खाई है जहां पे वो अपने थॉट्स में ट्रैप्ड थी, तो क्या वो इसको एड्रेस करना चाह रही है, क्या वो इस पे क्लैरिटी लाना चाह रही है, क्या वो डेफिनेटली कंसिडर कर रही है कि इस चीज को सॉल्व करना चाहिए, क्लैरिटी लाना चाहिए, या फिर ऑल टुगेदर इस चीज को छोड़ के मुझे आगे बढ़ना चाहिए। सो शी इज काइंड ऑफ कंटेम्पलेटिंग दिस। ओके, अगर हम देखें कि अगर इसी एनर्जी से वो आगे बढ़ती है तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? ऑफकोर्स क्या है कि एंड शी इज नॉट हैप्पी विद द वे सिचुएशन इज राइट नाउ। एस ऑफ कप इन रिवर्स हमें बता रहा है कि काफी ब्लॉक्ड फील कर रही है। एस ऑफ कप इज अबाउट
not being able to receive the guidance around. Ace of Cup में काफ़ी ब्लॉक्ड फील कर रही है, अपने आसपास की चीज़ों को समझ नहीं पा रही है, जो चीज़ चाह रही है वो हो नहीं रहा है, यू नो, ये सारी चीज़ें हो रही हैं. Some, you know, kind of she is not in the vessel of receiving. एस ऑफ कप का जो ओरिजिनल कार्ड होता है जहां पे एक डव ऊपर से आ रहा है और आपके कप को फिल कर रहा है, और यहाँ पे ये अपोजिट है, ये बता रहा है कि आपके आसपास में चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको शायद नर्चर नहीं कर रही हैं. अगर आप ये ओरिजिनल कार्ड में जाओ तो ये कप रहता है और यहाँ पे डव जो हैं आके इसको भरते रहते हैं. अपोजिट हो गया, यानी कि आपके आसपास की इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है जहां पे आपको नर्चर नहीं मिल रहा होगा, आप ओपन टू रिसीविंग भी नहीं है. समझ में आ रहा है? ओके, ऑल राइट. ये जो चीजें हैं ना, ये जो मैंने बताया कि आपको शी इज कंसिडरिंग वन लास्ट टाइम वेदर शी शुड इस चीज को छोड़ देना चाहिए उसको, या फिर इसको एक बार फाइनली कंसिडर करना चाहिए. ये इस बंदे से रिलेटेड है, ये जो फाहमान है ना उससे रिलेटेड है, क्योंकि दीज टू कार्ड्स आर रेड टुगेदर. तो वो सोच रही है कि इस बंदे पे क्या वो फाइनली अपना मन बना ले कि ये ऐसा ही बंदा है, क्योंकि एस ऑफ नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है, यानी कि वो अभी भी इसके बारे में अच्छा नहीं सोच रही है, अभी भी लेट इट बी फहमान के बारे में, क्योंकि दिस इज नाइट ऑफ कप्स. ओके, सो दिस इज सम नाइट ऑफ कप्स जिसके बारे में वो कंसिडर कर रही है कि क्या इसको एक मौका देना चाहिए, बैठ के बातों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि बातें क्लियर नहीं है, क्लाउडी हैं कॉन्शियस लेवल पे. तो वो कंसिडर कर रही है कि क्या चीज़ों को मुझे क्लियर करना चाहिए इस बंदे के साथ, उसको एक और मौका देना चाहिए, इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहिए, या फिर मुझे फाइनली यू नो लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए. तो ये रिलेशनशिप से रिलेटेड है उसके, ये जो कंसिडरेशन है यहाँ पे, जो कंसिडरेशन है वो उसके करियर से रिलेटेड है. और यहाँ पे टेम्परेंस इज डेफिनेटली अपोजिट आ गया है. इट्स मोर लाइक कि हैंग्ड मैन की तरह है, जहाँ पे इट्स लाइक शी कैन वर्क ऑन कप मे बी, यू नो, वेल चीज़ें अभी थोड़ी सी अनबैलेंस्ड हैं, मैं यही बोलूँगी. अभी फ़िलहाल चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं, और अगर अनबैलेंस्ड रहेंगी चीज़ें तो चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगी, राइट? अगर चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं, मान लो कि गाड़ी का पहिया एक अनबैलेंस्ड हो जाता है, एक स्कूटर है, आगे का पहिया लड़खड़ा रहा है, अनबैलेंस्ड हो गया है पूरा स्कूटर, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा ना. तो वही चीज़ें हैं कि जब तक लाइफ में अनबैलेंस्ड का सिचुएशन बना है, आप कुछ डिसाइड करना चाह रहे हैं पर नहीं कर पा रहे हैं, थोड़े से ट्रैप्ड भी फील कर रहे हैं, और एक तरफ शायद रिलेशनशिप पे भी ध्यान है थोड़ा सा, पर ज़्यादा ध्यान करियर पे ही है. तो दो चीज़ें चल रही हैं. जैसा कि हमने ड्यूअलिटी की बात की थी इस वीडियो को स्टार्ट करते समय, तो एक तरफ तो करियर भी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फोकस है. ओके, क्योंकि सबकॉन्शियस लेवल में हमारा क्या आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स क्या है? हमारा जो एम्बिशंस होता है, जो हमने काफ़ी दिनों से मेहनत किया है अपने करियर पे, उस पे फोकस है सबकॉन्शियस लेवल पे, वो चाह रहे हैं. लेकिन कॉन्शियस लेवल पे एक रिलेशनशिप भी है, यहाँ पे ड्यूअलिटी, दो चीज़ें हैं, चैलेंजिंग. जैसा कि मैंने आपको चैनल मैसेज आप बोल लीजिए उसको, हमने ड्यूअलिटी के बारे में बात किया. अर्थ रेल्म में हमें डिवाइन ड्यूअलिटी का ऑब्स्टैकल देते हैं ताकि हम डिसाइड कर पाएँ हमारे लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. सोल को फॉलो करेंगे, ईगो को फॉलो करेंगे, क्या करेंगे. तो एक डिसीजन मेकिंग जैसा यहाँ पे लग रहा है. अनबैलेंस क्या सिचुएशन बना हुआ है कि रिलेशनशिप को चूज़ करे या फिर मैं अपने मेहनत को, अपने ड्रीम्स को चूज़ करूँ. लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ड्रीम्स ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आप देख सकते हैं. और जब तक अनबैलेंस का सिचुएशन रहेगा, क्या होगा? जब हम ड्यूअलिटी में रहेंगे, कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्लैरिटी नहीं रहेगी हमें कि हमें अपना ड्रीम चाहिए, करियर चाहिए या फिर हमें रिलेशनशिप चाहिए, तब तक क्या रहेगा? हम हैंग्ड रहेंगे, हम चीज़ें आगे फास्ट वे में मूव नहीं कर पाएंगी.
ओके तो हमको ये सारी सिचुएशन को संभालना होगा, इस पे क्लैरिटी लानी पड़ेगी, तभी हम इस चीज़ को सॉर्ट आउट करके एक क्लैरिटी मिलेगा हमको लाइफ में, तब हम डिसाइड करके आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं अभी मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट आई वॉन्ट। ओके मुझे अपना करियर इंपॉर्टेंट है, मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती हूँ, अपने फैमिली के लिए कुछ अचीव करना चाहती हूँ। ये सारा एरिया जो देखो पास्ट का प्रेजेंट का उसके करियर पे फोकस्ड है। अभी ये आगे बढ़ने में थोड़ा सा ये लव रिलेशनशिप का भी एंगल आया है, एंड शी इज फीलिंग वेरी अनफुलफिल्ड एंड अनहैप्पी एट दिस टाइम, एज इफ कि उसको एंड शी इज काइंड ऑफ फीलिंग एम्प्टी आप बोल सकते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप इन रिवर्स है तो वो थोड़ा सा ब्लॉक्ड फील कर रही है, एम्प्टी फील कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो चाह रही है वो उसको कैसे चूज करे, क्योंकि शी हैज़ टू मेक सम काइंड ऑफ एक अंदर में शायद ड्यूअलिटी का द्वंद्व है, क्या करे नहीं करे समझ नहीं आ रहा है। तो ये एनर्जी हमने देखा है उसके लाइफ में शायद अभी प्रिवेलेंट है। अब गॉडेस कौन सी काम कर रही है उसके साथ, चलिए देखते हैं। सरेंडर, वाओ दिस इज ब्यूटिफुल। सरेंडर का कार्ड क्या बता रहा है हमें कि वो बहुत ज़्यादा सोच रही है, जैसा कि आपको सारी एनर्जी मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे वो यहाँ पे काफ़ी बंधी सी फील कर रही है, क्लैरिटी नहीं है, लग रहा है कि पीछे जा उसकी लाइफ या फिर उसका करियर थोड़ा सा रुक गया है या फिर पीछे की तरफ जा रहा है यहाँ पे भी। और वो अपने करियर पे उसने एक्चुअली वॉन्ट्स टू करियर पे फोकस है और वो अपने लिए कुछ अचीव करना चाहती है। और यहाँ पे एक रिलेशनशिप का भी कंसिडरेशन है कि उसको एक मौका दे नहीं दे, क्या चूज करे क्या चूज नहीं करे। और काफ़ी आप ऐसा फील कर सकते हैं कि टाइड अप है वो, ये चूज करे वो चूज करे, अपने आप को चूज करे, अपने करियर को फोकस करे, क्या करे नहीं करे, चीज़ें अनबैलेंस्ड होके आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो कहने का मतलब है कि क्योंकि लाइफ में बैलेंस तो उसके है और चीज़ें भी काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि यहाँ पे उसके थॉट्स ही उसको रोके हुए हैं। एंड वी मैनिफेस्ट थ्रू आवर थॉट्स, हम जिस तरह का सोच रखेंगे वही सारी चीज़ें हमारा वाइब्रेशन बन जाता है, हमारी फ्रीक्वेंसी बन जाती है, और वही फ्रीक्वेंसी से हम वही सारी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ट्रैप्ड फील कर रही है, इसके थॉट्स इसको ट्रैप्ड फील करा रहे हैं। यहाँ पे जो पॉजिटिव एनर्जी हो सकती थी वो क्या हो गई है, इसको अपने वाइब्रेशन में लाने के लिए इसको इसने उल्टा कर दिया है। आप देख रहे हो कि कैसे हो रहा है, क्योंकि इसकी अभी क्योंकि क्या है कि यहाँ पे ट्रैप्ड फील कर रही थी पास्ट में, लेकिन अभी वो अगर काम रह के बिना कुछ आसपास की चीज़ों पे ध्यान देते अगर वो आगे बढ़ती जाती तो ये फाइनली वो बैलेंस कर लेती, क्योंकि ये कार्ड भी पॉजिटिव है और आप बोल सकते हैं कि एक लाइफ लेसन वो पार कर लेती। बट क्योंकि क्या हो रहा है कि इवन दो उसके करियर में चीज़ें स्लो एंड स्टेडली थी, पर अब क्या है कि वो काफ़ी थोड़ा आप बोल सकते हैं कि नर्वस होने लगी है, या फिर उसको थोड़ा सा उसको ऐसा लग रहा है कि शी इज़ डाउटिंग थिंग्स और ऑल दैट, क्योंकि वो पास में जा रही है। और पास में आप क्योंकि अपने दिमाग योर थॉट्स आर एवरीवेयर, डाउट्स आ रहे हैं, ट्रस्ट नहीं हो रहा है, तो ये भी कार्ड क्या हो रहा है, अनबैलेंस्ड हो गया है। और जब चीज़ें अनबैलेंस होंगी तो वहाँ पे भी ये क्या है, जो चीज़ें फास्ट होके जा रही थी वो भी रुक जाएंगी। तो हमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भले ही चीज़ें स्लो एंड स्टडी हो रही है, बट व्हाट शुड यू डू। यहाँ पे क्या है कि बेसिकली वो अनग्राउंडेड हो गई है। आप देख भी रहे हैं कि वो हवा में दिस कार्ड इज मूविंग, तो क्या ज़रूरत है कि आप ग्राउंड हो जाइए, थोड़ा अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। तो यूनिवर्स क्या बोल रहा है, कौन सी गॉडेस उसको आई है हेल्प करने के लिए? आई सेड जो उसको बोल रही है सरेंडर करो, बिकॉज शी इज ट्राइंग, मे बी शी इज ट्राइंग टू बैलेंस हर करियर विथ हर रिलेशनशिप। वो हर चीज को परफेक्ट रखने की कोशिश कर रही है, एंड शी इज काइंड ऑफ ऑल ओवर। वो हर चीज को परफेक्ट करके, कंट्रोल करके परफेक्ट करना चाह रही है, और यूनिवर्स उसको बोल रहा है काम डाउन, ग्राउंड योर सेल्फ एंड सरेंडर। ठीक है, ये उसका गाइडेंस है। किसी भी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सरेंडर कर दो। चलो देखते हैं 3 कार्ड्स में क्या आता है। बी पेशेंट, एग्जैक्टली। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब उससे पेशेंस नहीं हो रहा है, वो चीजें बहुत स्लो हैं, सही नहीं जा रही हैं, तो उसके कारण क्या हो रहा है, इम्पेशेंस हो रहा है। शी इज गेटिंग इम्पेशेंट, मे बी शी इज ट्राइंग टू कंट्रोल थिंग्स, करियर फ्रंट में या फिर रिलेशनशिप फ्रंट में।
मोस्टली लाइक इन करियर फ्रंट, क्योंकि रिलेशनशिप फ्रंट में कंट्रोलिंग नहीं है, रिलेशनशिप फ्रंट में है कि शुड आई कंसिडर गेटिंग क्लैरिटी ऑन दिस पार्ट वंस। यहाँ पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल इज मोस्टली यहाँ पे, क्योंकि क्या हो रहा है कि आप यहाँ पे थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, या फिर जो स्लो डाउन हो गया है करियर में या लाइफ में, करियर में वहाँ पे थोड़ी सी अनग्राउंडेड एनर्जी आ गई है, एज इन स्कैटर्ड एनर्जी आ गई है, जिसके कारण आपको क्या बोला जा रहा है, बी पेशेंट। ये अभी यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है कि गेट ग्राउंडेड, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, ओके, एम्ब्रेस योर पावर। तो ये चीजें आई हैं। यहां पे क्या हमने बोला, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट उसको बोला जा रहा है। लिव लाइफ टू द फुलेस्ट का मतलब है कि जो वो ड्रीम अपने लिए चाहती है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी मैंने आपको पहले भी बोला कि आ रही है, कि वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, बनना चाहती है, मे बी शी हैज़ वर्कड अ लॉट फॉर दिस एंड वो इसको छोड़ना नहीं चाहती है, वो एक चीज़ को चूज़ नहीं करना चाहती है, वो रिलेशनशिप को बस चूज़ नहीं करना चाहती है, वो अपने ड्रीम्स को भी चूज़ करना चाहती है, वो अपने एम्पावरमेंट को चूज़ करना चाहती है। और यूनिवर्स की तरफ से उसका गाइडेंस यही है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, लिव योर लाइफ गिल्ट फ्री। अगर तुमको कुछ लगता है कि तुमको चूज़ करना चाहिए, तुम्हारी कोई एक जबरदस्त इच्छा है, you have a strong call to do something, then live your life to the fullest, live freely, live guilt free। ये एक गाइडेंस है उसका। और यहाँ पे क्या है, embrace your power। यहाँ पे ये काफ़ी पावरफुल कार्ड आया है और यही उसको बोला जा रहा है कि embrace your power। अभी वो उसकी एनर्जी जो है यहाँ पे ट्रैप्ड फील करने के कारण, यहाँ पे स्कैटर्ड फील करने के कारण क्या है, शी इज़ आउट ऑफ हर पावर, शी इज़ आउट ऑफ हर वोर्टेक्स आप बोल सकते हैं। आई मीन उसका शायद थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास कम हो रहा है, या फिर शी इज़ गेटिंग ऑल दी सेल्फ डाउट, स्कैटर्ड एनर्जी, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, इम्पेशेंट हो रहा है, मेरे हाथ से कुछ निकल ना जाए, इस तरह की चीज़ें हैं। इसीलिए उसको बोला जा रहा है एम्ब्रेस योर पावर इंस्टेड ऑफ डाउटिंग योर सेल्फ। जब चीज़ें स्लो हो रही हैं तो अपने आप को हम क्या करते हैं, डाउट करने लगते हैं। डोंट डू दैट, स्टे काम, बी पेशेंट, पेशेंट रहो। जब पेशेंट रहोगे तो स्कैटर्ड थॉट थम जाएंगे। टेक डीप ब्रेथ एंड एनालाइज द सिचुएशन, और उसके बाद क्या करो, चूज व्हाट मेक्स यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। जो भी चीज़, चाहे तो वो रिलेशनशिप हो, चाहे तो वो करियर हो, जो भी चीज़ चूज करना चाहती हो, चूज दैट, उस चीज़ को चूज करो जो कि तुमको लाइफ को फुलेस्ट लीव करने में हेल्प करता है। ओके, एंड ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये ड्रीम्स भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ड्रीम्स का ही हमें, क्योंकि बॉटम ऑफ द कार्ड उसका स्टार का है जो कि ड्रीम्स का है, तो मुझे लगता है कि शायद वो अपने ड्रीम्स को चूज करने में हिचक रही है या क्या, पता नहीं। बट उसको बोला जा रहा है कि जो भी तुम चूज करना चाहती हो ना, चूज करो, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड एम्ब्रेस योर पावर। डरो मत, हिचकिचाओ मत, चूज इट। सो दिस इज द गाइडेंस आई थिंक वी आर गेटिंग फॉर हर, फॉर सुम्बुल। Okay, this is the one. Surrender to play. Yeah. सोच के, हिचक के, I mean, it's like, the energy is like कि फूक के कदम बढ़ाना, या फिर कुछ गलती ना हो जाए, इस तरह से जीने से, I mean, don't live like that. Embrace your power, live guilt free, live to the fullest. Be patient also at the same time, and instead of thinking so much, अभी क्या हो रहा है ना कि वो चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उसका गाइडेंस भी आया है कि तुम सरेंडर कर दो। इंस्टेड ऑफ ये सोचने से कि ये करूंगा तो शी इज काइंड ऑफ मेजरिंग ऑल हर एक्शंस, ये करना सही रहेगा या वो करना गलत रहेगा, हर चीज़ को कैलकुलेट करके सही गलत, अगेन ड्यूअलिटी आ रहा है यहाँ पे, क्या सही है क्या गलत है, क्या लोग समझेंगे, क्या ये करना चाहिए। यूनिवर्स, स्पेशली द गॉडेस हियर इज टेलिंग कि तुम इन सारी पचड़ों में मत पड़ो, ठीक है। यू एम्ब्रेस योर पावर एंड यू सिंपली चूज दैट मेक्स यू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। एंड जब आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तभी आप एनालिसिस पैरालिसिस में अटकते हैं और आप फंस जाते हैं, और बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो पीछे भी, पास में भी चले जाते हैं हम।
but when you stop bothering about everything around you and you just get and you just immerse yourself in what you are doing, कहने का मतलब है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं बस उसमें अपने आप को डुबा लेते हैं, इंस्टेड की दुनिया क्या बोल रही है, लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, और आप बस अपना काम इंजॉय करते हैं. You just flow with the wind. You just flow with the wind and it's fun. You enjoy it. और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, तो वो चीज़ें बोला जा रहा है. आई थिंक सो. आई थिंक दिस इज द गाइडेंस. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद सुम्बुल्स लाइफ सो फार. येस, मोस्टली इट इज डोमिनेटेड बाय हर करियर, बट एक थोड़ा सा एटीट्यूड ये भी है कि इस बंदे के साथ क्या एक फाइनल रिकन्सिलिएशन करना चाहिए, बात करके चीज़ों पे क्लैरिटी लानी चाहिए, या फिर इसको टोटली लेट गो करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए. ठीक है, क्योंकि एक तरफ उसका करियर है और एक तरफ एक ये बंदा भी शायद कुछ 20-30% में है. तो ये दो ड्यूअलिटी में वो फंसी हुई है, बहुत चीज़ों को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रही है. एंड जब हम बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में पड़ जाते हैं तो हम आगे बढ़ने में बहुत सोचते हैं. इंस्टेड क्या करना चाहिए उसको, वो चीज़ करो जो उसको सही लगता है, और अगर वो करेगी तो वो पावरफुल भी फील करेगी, एंड देन शी कैन काइंड ऑफ go ahead with that. So this is the guidance coming for Sumbul at this moment. How about taking one card from my Dolphins card here to round up, to sum up the reading. Guidance coming for Sumbul at this point in time. Yes, I don't know. Okay, so she's, हमने बात की ना कि वो ड्यूअलिटी में है, वो बहुत सारी चीजें अब क्वेश्चन कर रही है. कि अपने ड्रीम्स को चूज करे, या फिर रिलेशनशिप को चूज करे, या फिर रिलेशनशिप को कंसिडर करे. एक तो सोच रही है कि वो अपने करियर को चूज करे या फिर रिलेशनशिप को चूज करे. वन ड्यूअलिटी. सेकंड ड्यूअलिटी है कि क्या ये जो रिलेशनशिप है इससे वो बात करे, क्लैरिटी लाए, या फिर इसको लेट गो करके छोड़ दे. ये दूसरा डिसीजन मेकिंग, दूसरी ड्यूअलिटी. फिर एक चीज़ आ रहा है कि शुड शी चूज हर सेल्फ. क्या उसको अपने ड्रीम्स को चूज करने का हक है, नहीं है हक है, क्या वो सेल्फिश होगा अगर वो अपने ड्रीम्स को चूज करती है, समथिंग लाइक दैट. तो यहाँ पे उसका गाइडेंस भी है, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. ये चीज़ें हैं. और दूसरी चीज़ है कि एक स्कैटर्ड एनर्जी है, तो वहाँ पे बी पेशेंट है. तो जो भी गाइडेंस है उसका ये यस आंसर आया है. तो उसका कुछ, आई थिंक शी इज क्वेश्चनिंग हर सेल्फ. वो बहुत सारे क्वेश्चंस अपने आप से पूछ रही है, और उसका आंसर यही है कि आई थिंक उसका आंसर है टू चूज हर सेल्फ. एम्ब्रेस योर पावर, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. यस, चूज योर सेल्फ. इट्स लाइक चूज योर सेल्फ. जो भी चीज़ उसको लाइफ में फुलेस्ट लिव करने में हेल्प कर रही है ना, शी शुड चूज हर सेल्फ. क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एस ऑफ कप उल्टा है, और एस ऑफ कप उल्टा इज ऑल्सो लाइक शी इज सैक्रिफाइसिंग हर सेल्फ. वो अपने आप को चूज नहीं कर रही है फॉर सम रीजन. अपने आप को नर्चर्ड फील नहीं कर रही है. उसकी जो सराउंडिंग है ना, नर्चरिंग नहीं है, एंड दैट इज वाई शी इज गेटिंग कंफ्यूज्ड ऑल्सो. बट वट एवर इट इज, उसका गाइडेंस यही है कि लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट. लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट एंड चूज योर सेल्फ विथ एस ऑफ कप. So I think this is the guidance coming in for her. All right, guys. Now we'll move on to Farman's reading in the next video. I'll see you there.